So I am going to solve this question. Its question ID is 704026. And before solving the question, let me say you this thing again, that if you have any doubt, do not hesitate to interrupt me. Okay. And if you think that you will ask your question at the last of the explanation, that is also good. You can ask me. Okay. But please ask me. That is very important. Okay. Do not hesitate here. No one knows no one. Okay. समझ गए होंगे इसका मतलब, क्योंकि जो आपके बगल में बैठा है उसको भी आप जानते हैं, इसका कोई पक्का नहीं है ना? बगल में मीन्स इफ यू सी योर स्क्रीन देन द योर नेबर is not necessarily known by you. Okay, so you needn't to hesitate here. Okay, so what question says, which one of the following functions is uniformly continuous on this interval 0 1? So let me write a result here. Okay, I will not prove this result here. So I will do it in the class of analysis. So what is the result? Okay, what result I'm going to write here? Can anybody tell me? Result F Left here. hand limit and right hand limit exist, then uniform continuous. Okay, good. A continuous function. This is important. Okay, a continuous function. A continuous function f 0 1 to r each uniformly UC. Let me write UC. Okay, on open interval 0 1 if limit x tends to 0 from right. Okay, fx and limit x tending to 1 from left fx exists. This is if and only if. Okay, otherwise it is not uniformly continuous. We will prove this result in the class. Okay, we had proved already, but those who are new will see its proof in the class. Okay, now so now we will examine that in which of the following cases 1 2 3 4 the limit at x equal to 0 exists, because at x equal to 1 the limit is clearly seen to be exist, right? Because at 1, what is, there is no problem, right? Everyone agrees at 1 the limit exists for every function. किसी को कोई समस्या नहीं है। देखो अगर 1 रखेंगे तो हर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम चेक करते हैं यहाँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव sin 1 by x does not exist. Let me claim it, and one of you will tell me why it not exists. Okay, so how can we prove that it does not exist? What can we use? Sir, using sequential definition of limit. Very good, very good. Okay, so take what sequence should we take? One sequence should be xn equal. Yeah, this will be fine, right? Only one sequence we need. Yeah, and another should be 1 by 2n plus 1 to 5 by 2. No, I don't think that we need to take another. Okay, why? Let me explain it to you. Okay, so sine the functional sequence will be fxn will be sine 2. Okay, sorry, this will not be 2, 2 will be, okay, if you will put xn here तो 1 by xn क्या होगा, इसके इक्वल होगा, राइट? ये क्लियर है। अब आप मुझे बताइए कि एफ एक्सएन सीक्वेंस आएगी क्या? चलिए बोलिए। 0 आएगा, दूसरे प्लेस पे क्या आएगा? 3 पाई बाय 2 इज -1. If you will put 2 5, what is 5 pi by 2? What is the value of 5 pi by 2? It is 1, right? Fine. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? तो अगली वैल्यू क्या आएगी बोलो? If you will put 3, so 0, right? Then -1, I think.
if you will put 5 here, so oh no, wait, हाँ देखो पहले हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया तो ये आया, 3 पुट किया तो 4 पाई बाय 2। ओके, सो ये 0 आना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप इस पे क्या करेंगे ना, 3 पुट करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो sin 2 पाई 0 आएगा। ओके, फिर क्या आएगा देखते हैं, अगर आप 4 पुट करेंगे तो 5 पाई बाय 2 आएगा, 5 पाई बाय 2 मीन्स 1। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके से इसमें ये चीजें रिपीट होंगी। ओके, कि 0 भी आए रिपीट होगा, -1 भी रिपीट होगा और 1 भी रिपीट होगा। सो विल दिस सीक्वेंस बी कन्वर्जेंट? इट इज नॉट कन्वर्जेंट, राइट? सबको सब एग्री करते हैं ना, इट इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर कोई समस्या है तो बताओ। इस तरीके से आप n की वैल्यूज अलग अलग रखते जाएंगे ना, आप पाएंगे कि आपको इन पॉइंट्स पर वैल्यू देखनी है, कि यहाँ पे देखनी है, कि यहाँ पे देखनी है, और यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे देखनी होगी, इस तरीके से, राइट? तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप पाएंगे कि इसमें रिपीट हो रही है, 0 -1 0 -1 इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो ये सीक्वेंस की 3 लिमिट्स होंगी, तो इट इज नॉट कन्वर्जेंट। बट अगर सीक्वेंस किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए सीक्वेंशियल डेफिनेशन। कोई फंक्शन f(x) है और मैं 0 ही ले लेता हूँ, चलिए xn टेंडिंग टू 0, आप कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए। ओके, देन fxn भी एक लिमिट पर जानी चाहिए, जो कि लिमिट है l, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और किस पर जानी चाहिए? l, ये तो कन्वर्जेंट ही नहीं है। ओके, सो इट इज क्लियर, राइट? द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये ध्यान रहे, जब आप ये सीक्वेंस ले रहे हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि डोमेन के अंदर ही हो, हाँ, डोमेन से बाहर की सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लाइक ये वाला मतलब एक्सएन जो पार्ट है, ये डोमेन के अंदर आना चाहिए। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए सीक्वेंस लेते वक्त। जो ओपन इंटरवल 0 1 है ना, ये सीक्वेंस के पॉइंट वहीं से आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1-2 पॉइंट नहीं भी आएंगे तो आप चेक कर लेना, जैसे एन को आप 3 से स्टार्ट कर लेना। ओके, अगर ओपन इंटरवल 0 1 से बाहर हो गया तो, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी नीचे 2 से बड़ी है। ओके, सो अब मुझे बताइए, क्लियर है आप सभी लोगों को? ओके, ठीक है, चलिए मैं अगला वाला क्वेश्चन बोलता हूँ। अब अगला वाला मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, बस आपको बोलूंगा, ठीक है? सो व्हाट अबाउट द सेकंड वन? लिमिट e to the power -1 by x square, सॉरी, x टेंडिंग टू 0। x टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा ये लिमिट, बताइए? सो where 1 by x square goes as to infinity, right? h extends to 0. Everyone knows this? हाँ, तो ये लिमिट क्या आएगा? तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, राइट? ये क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगी, तो ये क्या कहाँ अप्रोच करेगा? 0 पर। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रहे, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और दोनों पॉइंट्स पर, इसलिए ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ऐसे ही ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसमें भी आप सेम तरीका अपना सकते हैं जैसे मैंने सीक्वेंस ली। ठीक है, 1 बाई एक्स की कॉस 1 बाई एक्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, 0 पर। बस यही सीक्वेंसेस आप ले सकते हैं, आप देखेंगे कन्वर्जेंट ही नहीं आ रही है। ओके, लाइक आपको लेना होगा कुछ ऐसे n पाई बाय 2, मतलब एडजस्ट करके लेना होगा, जिसमें 0 आएगा और एक e टू द पावर n टाइप का, या n जो भी आप लेंगे पाई बाय वगैरह समथिंग, वो आएगा। ओके, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है 0 पर। अब लास्ट वाले के लिए भी आप सेम रखेंगे, उसमें यहाँ पाई पहले से है, x को जैसे मैंने xn ली है ना सीक्वेंस, जैसे मैंने xn ली है सीक्वेंस, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके ले लेंगे ना सीक्वेंसेस। मुझे बताइए, या मुझे लिखने की जरूरत है? फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, इसलिए ये फर्स्ट, तीसरा और चौथा गलत है और दूसरा वाला सही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप में से कोई। सो दो मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ, इनमें से कौन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, कौन नहीं है, बताना। हाँ, 3 फंक्शंस लिख रहा हूँ।
ऑन ओपन इंटरवल 0 1 आपको बताना है, हाँ, e to the power -1 by x एंड e to the power -x स्क्वायर, इसको पूरे r में बताना है, ओके, दूसरे वाले को, एंड तीसरे वाले को e to the power -x on r, e to the power -x into e to the power -x स्क्वायर on r। पहले वाले को आपको केवल उस पर बताना है, ओपन इंटरवल 0 1 पे। तो बताइए कौन सा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, कौन सा नहीं, इन चारों में से। I will not say to explain you, okay? सेकेंड एंड थर्ड वाला फोर्थ होगा, सेकेंड एंड Okay, okay. So second and fourth are uniformly continuous. Very good. So everyone agrees? हर कोई सहमत है कृष्ण गोपाल की बात से कि ये दो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हैं, and these two are not. Do you know why should I ask this question? मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपको पता है? मैंने इसलिए पूछा कि आप कई बार जैसे गलती कर देते हैं, आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे देखा तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हाँ, ये आपको मैं बता दूं, e to the power -1 by x में आपको लग रहा होगा इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम x से 0 की ओर जाएंगे तो ये e to the power -npt आएगा, 0 आएगा नहीं, लेकिन x की तरफ आप 0 किस तरफ से जाएंगे उस पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका 0 है, आप यहाँ से 0 को अप्रोच करते हैं तो e to the power -1 by x, अब x पॉजिटिव होगा तो ये वाली क्वांटिटी इंफिनिटी की ओर जाएगी, तो ये होगा e to the power -infinity, ये 0 हो जाएगा, ओके। लेकिन बट इफ यू गो फ्रॉम हियर, तो ये जो -1 by x है ना, ये क्या हो जाएगा आपको पता है, ये e to the power infinity हो जाएगा, क्योंकि x भी नेगेटिव होगा ना उस केस में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस लिमिट को आप करिएगा घर में, तो e to the power infinity क्या होगा फिर आपका, सॉरी, ये e to the power infinity, ये गलत लग गया मुझसे टिक, तो e to the power infinity इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सबको ये बात? नहीं है तो पूछिए। अब ये दूसरे वाले में हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इन्फिनिटीज पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए है, और इसको आप सीक्वेंशियल क्राइटेरियन से कर सकते हैं, और इसमें भी दोनों पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये नेट में पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ओके। कोई डाउट है तो पूछ लो, तो हटाऊं मैं इसको यहाँ से, ओके।